Hello friends, how are you? I hope that all of you are very fine. Friends, yesterday we have derived the formula for bright bandwidth. Today we are going to discuss the formula for dark bandwidth. उसके लिए हमारे पास फिर से एक बार वो डायग्राम होनी चाहिए. कौन सी डायग्राम? वो दो सोर्सेस प्लेस्ड एट a small distance d. Screen is placed at a distance capital D from the plane of sources, and one point was considered at any distance xn from the center of interference pattern. ब्राइट बैंडविड्थ का फॉर्मूला था, क्या आया था फॉर्मूला ब्राइट बैंडविड्थ का? ब्राइट बैंडविड्थ इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, है ना? Where lambda is the wavelength, capital D is the distance between sources and the plane of the screen, while small d is the distance between two virtual and monochromatic sources. So here, this is our diagram. A, B are two sources. This is a screen. Q be the any point at a distance xn. This is at a distance xn, and then sources A and B emits a light, and those light waves or rays reach the point Q. Light waves emitting from A, B reaching the Q will have some path difference, and that path difference is nothing but waves coming from A and B to the Q having some path difference. That path difference is PQ minus AQ. If this path difference is equal to n lambda, then nature of point Q is bright. If the path difference is 2n minus 1 lambda by 2, then its nature is dark. If BQ minus AQ is equal to twice n minus 1 whole multiplied by lambda by 2, then nature of the point Q is dark. And therefore, we shall write here, if BQ minus AQ is equal to twice n minus 1 lambda by 2, then nature of the point Q is dark. But path difference was derived, wasn't it? This path difference, but BQ minus AQ is equal to xn small d by capital D. This is by geometry, isn't it? हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है ज्योमेट्री का सहारा लेकर. Is it so? Therefore, BQ minus AQ, and therefore left side as if left side equal, right side will be equal. तो हम लोग लिखेंगे राइट साइड इक्वल. तो राइट साइड इक्वल लिखने के लिए हम इसे थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएंगे और राइट साइड लिख लेंगे. So here xn small d by capital D, this is equal to twice n minus 1 lambda by 2. Okay. So if small d and capital D are shifted to right side, then you will get xn is equal to twice n minus 1 lambda capital D by 2 small d. Have you understood this?
इतने 3-4 स्टेप्स जो लिखे हैं वो समझ में आ गए सब लोगों के? हाँ, आ गए क्या सबके समझ में? सबके समझ में आ गए? ओके ओके, वेरी गुड। नाउ फ्रेंड्स, अगर ये तुम्हारा, अगर ये क्यू पॉइंट nth डार्क पॉइंट है, अगर ये क्यू पॉइंट nth डार्क पॉइंट है, तो इसके बाद में जो दूसरा नेक्स्ट डार्क आएगा, इसका नंबर होगा n+1th डार्क। मतलब ये 10वां है तो ये 11वां, अगर ये 15th है तो ये होगा 16th, ये तीसरा है, ये तीसरा है तो ये होगा 4th। ऐसा ये नंबर एक से बढ़ जाएगा। इसका मतलब है इस n+1th डार्क बैंड का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डार्क, सेंटर ऑफ ब्राइट पॉइंट विल आल्सो बी चेंज। अगर हमने इस डिस्टेंस को xn नाम दिया है तो इसे हम लोग दे देंगे अब xn+1। ओके, है ना? इसे नाम दे देंगे हम xn+1। तो दोस्तों लिखेंगे हम अपना xn+1, फिर we will write now xn+1। xn+1 will be equal to, we have to replace n by n+1। so here 2 into n+1, ये माइनस ये स्क्वायर, सॉरी -1 स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीटेड, लैम्बडा कैपिटल डी बाय 2 स्मॉल डी। ये दोनों, ये अभी इक्वेशन आ गए हमारे पास, लेकिन इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना। तो वी विल सिंप्लीफाई दिस अनदर इक्वेशन and we will write here xn+1, bracket will be simplified, 2n+2 minus 1 lambda capital D by 2 small d, but 2 and -1 it is equal to +1, and therefore it is 2n+1 lambda capital D by 2 small d. Here we have formula for xn+1 and this is the formula for xn। अगर nth डार्क बैंड है उसका डिस्टेंस इतना है, n+1th डार्क बैंड है तो उसका डिस्टेंस इतना है, तो दोनों डार्क बैंड के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसे हम लोग कहेंगे बैंडविड्थ, because bandwidth is the distance between two successive bright or two successive dark bands. Is this so? So do this subtraction at your best. Here xn+1 minus xn is equal to this one minus that one. So 2n+1 into lambda capital D by 2d minus in bracket 2n minus 1, once again this lambda capital D by 2 small d. We can take something common. So lambda capital D by 2 small d can be taken out common. So by taking lambda capital D by 2 small d common, in bracket I am writing now 2n+1 and this minus sign as it is, this 2n minus 1 in the other bracket, square bracket completed. Now multiply this bracket with the minus sign and you will get this lambda capital D by 2 small d, it is 2n+1
minus into 2n, it is minus 2n, minus minus plus becomes plus, and this is how written y. 2n minus 2n be cancelled out. 1 plus 1 is equal to 2, and that 2 and this 2 will be cancelled. And we get now lambda capital D by small d. So this is the distance between two successive dark bands, and therefore we shall write distance between two successive dark bands is called dark bandwidth, and this is equal to lambda capital D by small d. ये आती है, ये आई है हमारी बैंडविड्थ फॉर डार्क बैंड, और हमारी बैंडविड्थ फॉर ब्राइट बैंड थी लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ये बैंडविड्थ और अपनी अभी जो डार्क बैंड के लिए आ गई वो सेम है, तो इसके कारण हम बोल सकते हैं ब्राइट बैंडविड्थ एंड डार्क बैंडविड्थ आर इक्वली स्पेस्ड, आर ऑफ इक्वल साइज। ब्राइट बैंडविड्थ and dark bandwidth are of equal in size. Thus, it is clear that bright bandwidth and dark bandwidth are of equal in size. Now, दोस्तों, it is the biprism experiment. Friends, we are going to discuss the biprism experiment. But before that, studying biprism experiment, but before discussing biprism experiment, one should know what is meant by biprism. One should know the meaning of biprism. What is biprism? You have listened prism. You have listened prism. That prism is usually of equal in size. It means its sizes are same. कौन सा prism देखा होगा? You have discussed prism. That prism is of equilateral triangle sized prism. Here ये है हमारा प्रिज्म का शेप, ऐसा प्रिज्म था। ये प्रिज्म में आप लोगों ने इस एंगल को नाम दिया था रिफ्रैक्टिंग एंगल, इस एज को नाम दिया था रिफ्रैक्टिंग एज। अब अगर यूजुअली प्रिज्म का ये रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्रीज हो, जरूरी नहीं उतना ही होना, पर मान लेते कि ये एंगल 60 डिग्रीज है, इट इज नॉर्मल प्रिज्म। नाउ अगर ये प्रिज्म का एंगल अगर बहुत छोटा हो, अब ये छोटा एंगल मतलब कितना करना, ये एंगल कर लेना है बिल्कुल 0.5 डिग्री। अब ये तो बहुत ज्यादा हुआ, फिर मुझे करना पड़ेगा इतना, ऐसा है ना। ये भी ज्यादा हो सकता, लेकिन मान लो आपकी ये 0.5 डिग्री है। ऐसा एक प्रिज्म जिसका ये बेस देखो, ये प्रिज्म की 3 बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए, रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्टिंग एज एंड ये रफ सरफेस होता है। अगर आपने हाथ में लिया ना, प्रिज्म लिया होगा किसी ने, तो एक साइड थोड़ी सी रफ रहती है। जिस प्रिज्म को हम लोग प्रैक्टिकल में यूज करते हैं ना, उसका बेस थोड़ा सा रफ रहता है, तो दिस इज कॉल्ड बेस। ये रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्टिंग एज। अब ये बेस इस प्रिज्म का। दूसरा ऐसा ही एक प्रिज्म लेना है और इसे यहां ज्वाइन कर देना है। कैसा ज्वाइन कर देना? बेस टू बेस। इसका मतलब मुझे एक पीस मिल गया जिसका एक्यूट रिफ्रैक्टिंग एंगल 0.5 डिग्री हो, और ये दूसरा एंगल कितना हो जाएगा दोस्तों, बताओ? ये वाला एंगल कितना बनेगा? ये एंगल बन जाएगा नियरली 180 डिग्रीज, मतलब 179 डिग्रीज। ये एंगल बन जाएगा 179 डिग्रीज, है क्या नहीं?
इज इट सो? 179 डिग्री बन जाएगा। ऐसे प्रिज्म को हम लोग कहते बाय प्रिज्म। सो बाय प्रिज्म इज अ प्रिज्म whose acute refracting angle is 0.5 degree while obtuse refracting angle is 179 degrees. In short, biprism is a prism whose refracting angle is nearly equal to 180 degrees. Nearly equal to 180 degree. देखो हाँ, मैं क्या बोल रहा हूं, ये बोलने की जरूरत है ही नहीं। One can say simply what? Biprism is a prism whose refracting angle is nearly equal to 180 degrees. तो ये 180 डिग्रीज के नियर अबाउट हुआ। हाथ में अगर लिया ना तो ही पता चलता कि थोड़ा सा बीच में ऐसी एक लाइन बन गई है हाथ में लेने के बाद, नहीं तो ये बिल्कुल ऐसा ये ग्लास प्लेट जैसा ही नजर आता है। अब ये तो मैंने बहुत ही पैरेलल बताया, लेकिन यहाँ थोड़ा सा उठाव अगर है तो ये ऐसा दिखाई देता है बायप्रिज्म। Bioprism is a prism whose refracting angle is nearly equal to 180 degrees. और बहुत ही डिटेल अगर किसी को समझाना है तो समझाएंगे। वह ऐसा एक प्रिज्म ले जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल 0.5 हो, दूसरा एक प्रिज्म ले उसका भी रिफ्रैक्टिंग एंगल 0.5 हो, और उन दो प्रिज्म्स को बेस टू बेस ज्वाइन कर दे, तेरे पास एक प्रिज्म आ जाएगा उस जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल 180 डिग्री के करीब हो। मतलब ये प्रिज्म को मैंने ऐसा बढ़ा दिया, इसका मतलब ये रिफ्रैक्टिंग एंगल बढ़ जाएगा। कितना बढ़ना चाहिए? तो नियरली 180 डिग्रीज होना चाहिए। नियरली 180 डिग्रीज, तो मैं 180 डिग्रीज तो बोलूंगा नहीं, क्योंकि 180 डिग्रीज हुआ मतलब वो फ्लैट सरफेस बन जाएगा। सो इट इज रिटर्न 179 डिग्रीज। क्या आप लोगों के दिमाग में बायप्रिज्म की डायग्राम अब परफेक्ट आ गई? इसका मतलब ये जो लाइन दिखाई देगी अपने बोर्ड को परपेंडिकुलर, वो लाइन को हम लोग क्या कहेंगे रे भाई? जो बोला था यहां पर वही बोलेंगे यहां पर। अंडरस्टूड? तो ये जो एंगल ये जो रिफ्रैक्टिंग एज है वही है यहां पर। तो थ्री डायमेंशनल फिगर निकालने की जरूरी नहीं, वो डायग्राम बिंदास आप लोग ऐसा निकालेंगे, स्ट्रेट लाइन, ये सेंटर वाला थोड़ा सा पॉइंट और ये ऐसा इधर, खत्म। अच्छा, ये बता दे किसी ने अगर थोड़ी सी ज्यादा बड़ी भी बता दी तो बहुत गलत होने वाला है क्या? कुछ नहीं गलत होने वाला। आपने स्टेटमेंट तो लिख लिया ना कि बायप्रिज्म इज अ प्रिज्म हुज रिफ्रैक्टिंग एंगल इज नियरली इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये 180 डिग्रीज नहीं है, दिख रहा है मुझे, वो तो 150 के नियर अबाउट होगा। 180 डिग्रीज के नियर अबाउट निकालने के लिए बहुत बारीकी से काम करना पड़ेगा, समझेगा? तो ये ऐसा अगर निकाले तो बहुत अच्छा, पर थोड़ा सा ज्यादा एंगल भी दिखाई दिया, ऐसा अगर दिखाई दिया तो ये बहुत क्लियर कट समझ में आता कि ये स्टूडेंट को बायप्रिज्म की मीनिंग समझ में आ गई। ओके, चलो तो अब दोस्तों बात करेंगे बायप्रिज्म हमारे लिए क्या काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये बायप्रिज्म। ये बायप्रिज्म हमें कोहेरेंट सोर्सेस देने के लिए मदद करता है, क्योंकि हमारी इंटरफेरेंस कंडीशन, सॉरी हमारी स्टेडी इंटरफेरेंस के लिए एक कंडीशन है, और वो बहुत ही अहम कंडीशन है। विच वन? दैट अदर साइड से भी सेंटर से बल्ज दिखना चाहिए ना। अदर साइड से, उधर के साइड से ये बल्ज इधर से दिखाई दिया तो इधर से दिखाई देगा, तुझे ऐसा लगता है कि इधर से, अरे एक सरफेस मैंने फ्लैट कर दिया, तुझे 0.5 प्रिज्म की एक साइड, अभी बेस तो फ्लैट बनना चाहिए ना, बेस फ्लैट बनना चाहिए। रिफ्रैक्ट प्रिज्म को 3 साइड्स रहते, 4 साइड्स नहीं, ये तो 4 साइड्स वाली बात हो जाएंगे ना। ओ मैडम अरे कितने साइड्स बन जाएंगे ये? अगर मैंने ये ऐसा प्रिज्म लगा दिया
दोनों साइड से बल्ज कर दिया तो कितने साइड्स बन जाएंगे? 4 साइड्स। और प्रिज्म को कितने साइड्स रहते हैं, मतलब कितने सरफेसेस रहते, साइड्स नहीं रहती, वो 3 डायमेंशनल फिगर है। कितने सरफेसेस? 3 सरफेसेस। प्रिज्म हैविंग कितने फेसेस? कितने फेसेस? 6 फेसर। कितने? 2 2 3 4 5, 5 रहते हैं। 5 faces and all are rectangular. Sorry, 3 are rectangular, 2 are triangular. 2 triangular faces, 3 rectangular faces, उसमें से 2 ट्रांसपेरेंट फेसेस रहते हैं। साक्षी भात लवंडे, लवकर यायचं शिकला पाहिजे बरं. हा, चला मग आता ठरलं का आपला हा बायप्रिझमची डायग्राम काढायची म्हटल्या बरोबर तुम्ही बिलकुल असा फटकन एकदम कडक असा काढून टाकता. समजला? हे मोजत बसणार आहे का की 178 आहे का 179 आहे का 168 आहे? काळजी करत नाही, हे सुद्धा सध्याला 170च्या आसपासच असू शकतं. पण म्हटलं मी त्याला 179, तुम्ही ऐकणार, तुम्ही म्हणा, आम्ही ऐकू. पण लगेच असं नका काढू. दिस इज व्हॉट द बायप्रिझम हुज रिफ्रॅक्टिंग एंगल इज 180, नियरली 180 डिग्रीज. हम मानेंगे, मार्क्स देंगे भी, लेकिन दिमाग में तो रहेगा ये स्टूडेंट को ये एंगल 180 डिग्रीज 179 डिग्रीज दिखाई दे रहा है क्या? समझे ना? हाँ 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 हाँ, समझ गए. चलो दोस्तों, फ्रेंड्स, अब हम लोग काम करेंगे बायप्रिज्म के बारे में, लेकिन उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रिज्म पे अगर एखादी लाइट इंसिडेंट होती है तो वो कैसे किधर डेविएट होती है, नहीं तो लेंस पे अगर लाइट गिरती है तो किधर और कैसे डेविएट होती है, मालूम होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं मालूम? अगर हमारे पास ये ऐसा ट्रायंगल, मतलब ये प्रिज्म था, ये प्रिज्म पर एखादा लाइट अगर इंसिडेंट होता है, लाइट अगर इंसिडेंट होता है यहां पर, तो ये कैसे किधर डेविएट होता? दोस्तों, आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि ये यहां पर एक नॉर्मल आप लोगों ने निकाला होगा, नॉर्मल टू द सरफेस, है ना? अगर ये सरफेस को नॉर्मल है तो ये एंगल बनता है तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये परपेंडिकुलर है ना, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इधर, और अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ हो तो यू नो दैट when ray of light travels from rarer to denser, then it goes or deviates towards the normal. तो नॉर्मल के तरफ इधर कहीं झुक जाएगा, वो इधर होगा, वो इधर होगा, वो इधर किधर भी हो सकता है, खाली इस लाइन पे नहीं होगा. किस लाइन पे नहीं होगा? अरे रुक जा बाबा, ये यहां इस लाइन पे नहीं होगा, ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो यहां से थोड़ा सा नॉर्मल के तरफ झुक जाता है. झुकता है क्या नहीं? सवाल ही नहीं, झुकना ही पड़ता है क्या नहीं? सीखना है तो झुकना ही पड़ता, और यहां अगर सामने जाना है तो झुकना ही पड़ता. झुक गया किधर? नॉर्मल की तरफ, है क्या नहीं? अरे बराबर है क्या नहीं? हाँ 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 हाँ. तो ये होता है तुम्हारा रिफ्रैक्शन, ये हुआ है तुम्हारा रिफ्रैक्शन. इसी कुछ बात होने वाली है अपने बायप्रिज्म में. चलो, तो फिर हम ये पूरा हटा देंगे. और क्या नहीं समझ में आया ना, रिफ्रैक्शन रेज इधर उधर कैसे जाते नहीं समझ में आए तो उसी जगह उसी समय पूछ लो, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. क्योंकि डायग्राम आपको निकालना है, एक बार नहीं 5 बार निकालना है, तब जाके कहा ये बोर्ड का 2 मार्क्स का क्वेश्चन समझ में आएगा. और उस पे जो बातें होती है बेसिकली, उस पे प्रॉब्लम्स आते, वो प्रॉब्लम्स आप कर पाएंगे. आर यू हियर? आर यू रेडी? आर यू रेडी विथ पेन पेंसिल? पेंसिल होनी चाहिए आप लोगों के पास, और स्केल भी ले लो. आज की तारीख पहली बार डायग्राम निकाल रहे तो स्केल ले लो. अरे हो, यस यस यस, इट इज. चलो तो दोस्तों, ये है अपना बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट.
We have discussed biprism. What is the biprism? Biprism is a prism whose refracting angle is nearly equal to 180 degrees. And therefore, consider that this biprism experiment consists of, friends, this experiment is performed by the scientist Fresnel. So many times this experiment is also called as Fresnel's biprism experiment. Fresnel is the name of scientist. So the Fresnel experiment consists of an optical bench. क्या रहता उसमें? ऑप्टिकल बेंच रहता, मतलब ग्लास का बेंच. It is of the length nearly 2 meters, on which 4 movable stands are mounted. क्या क्या होता है उसमें? ऐसा एक ऑप्टिकल बेंच होता है, इस पे 4 मूवेबल स्टैंड, मतलब ये एक स्टैंड, ये दूसरे कलर से बताओ क्या? कोई जरूरी नहीं यार कलर बदलने में, है ना. ये ऐसे 4 स्टैंड्स होंगे. ये 4 स्टैंड पर जो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो ये नहीं है, नहीं तो बोलेंगे सर इसके लिए मुझे हमें क्या स्केल लेना पड़ती क्या? समझेंगे. तो दोस्तों यहां पर लगा देते हम लोग मोनोक्रोमेटिक सोर्स, यहां रखते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और अरे सॉरी 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 सॉरी, यहां रखते हैं हम लोग बाइप्रिज्म. यहां बाइप्रिज्म होगा और यहां होगा कॉन्वेक्स लेंस. व्हाट इज हियर? कॉन्वेक्स लेंस. व्हाट इज हियर? बाइप्रिज्म. और यहां से हमारे पास एक होगा टेलीस्कोप, सॉरी माइक्रोस्कोप, माइक्रोमीटर आईपीस. दिस इज आईपीस और माइक्रोस्कोप. आईपीस और ये चारों चीज लिखना तो है एक ही लाइन में. क्या लिखना है? बाइप्रिज्म experiment consists of an optical bench on which 4 movable stands are mounted. On those 4 movable stands, monochromatic source, biprism, lens, मतलब convex lens, so monochromatic source, biprism, convex lens and micrometer eyepiece are fixed. They are adjusted. Next important line सुनिएगा. They are adjusted at same level. They are adjusted such that they are at same level. Stands are adjusted such that all these 4 are at same level. अगर आप लोगों को वो ये डायग्राम ऐसी निकालनी नहीं पसंद, तो आप लोग बहुत ही सिंपल वे से डायग्राम ये निकाल सकते हैं, क्योंकि हाइट सेम होती नहीं होती. तो फिर क्या करो? बिंदास ऐसी एक लाइन खींचो और क्या करो? यहां ये एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स, यहां तुम्हारा बाइप्रिज्म, यहां तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस, यहां तुम्हारा माइक्रोमीटर आईपीस. मतलब ये जो फिगर है वो साइड व्यू वाली फिगर है, ये फिगर है ये टॉप व्यू वाली फिगर. किसी ने ऊपर से देखा है इस डायग्राम को, ये अरेंजमेंट को, तो ऐसी दिखाई देती है. बात खत्म. ये एक लाइन में आधा मार्क्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया. हैव यू लिसन्ड केयरफुली एंड हैव यू ड्रॉन दिस डायग्राम एंड रिटन अ स्टेटमेंट? स्टेटमेंट लिखा है क्या बताओ? मेरे पास समय है अब 55 मिनट. तो 55 मिनट में ये क्वेश्चन बहुत तबियत से हो जाने वाला है. ओके. हाँ, नहीं लिखा तो क्यों नहीं लिखा रे बाबा देवशाला. Biprism experiment consists of an optical bench on which monochromatic source, biprism experiment consists of an optical bench
on which four movable stands are mounted. They are adjusted at same level. No. और चारों बातें. Monochromatic source. Monochromatic source by prism. ये बाय का बी स्मॉल लिखे तो चलेगा, ये कोई नाम नहीं है, मेरे से लिखने का. बाय प्रिज्म, कॉन्वेक्स लेंस एंड माइक्रोमीटर आईपीस. माइक्रोमीटर आईपीस आर फिक्स्ड on these four stands. Full stop. Stands are adjusted such that all are at same height. Okay, very important statement. Stands are adjusted such that they are at same level. Okay. Is it okay? चलो आगे. अभी अरे रिपीट क्या अभी लिख के दिया, चलेगा? हाँ, अब बहुत काम की चीज है. देखो तो दोस्तों, अगर मेरे पास ये बाय प्रिज्म है, देखो बाय प्रिज्म का भले एंगल बहुत बड़ा दिखाई देता होगा, लेकिन ये मुझे रे बताने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ी सी साइज मुझे बढ़ानी पड़ी. और जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल 0.5 डिग्री हो, हर बार 1-2 डिग्री का भी एक्यूट एंगल हो सकता. 1-2 डिग्री का एक्यूट एंगल बन गया तो वो 175 के करीब भी एंगल हो सकेगा, पर बोलने को है वो नियरली इक्वल टू 180 डिग्री. चलो, लेट दिस इज अ बायप्रिज्म एंड दिस इज मोनोक्रोमेटिक सोर्स. पर ये बायप्रिज्म को हम लोग कैसे रखेंगे, जरा ध्यान रखो. अभी पहला स्टेटमेंट, लेट अस कंसीडर दैट this is the bioprism, this is the monochromatic source. Now bioprism is placed or adjusted such that, पहली स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट लिख लो, bioprism is adjusted or rotated such that, bioprism is adjusted such that or bioprism is rotated such that its refracting edge, ये जो रिफ्रैक्टिंग एज रहता है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड, दैट विल बी पैरेलल टू स्लिट सोर्स. यहाँ ये स्लिट सोर्स है, भले ये सर्कल दिखाई दिया, स्फीयर दिखाई देगा होगा, लेकिन ये स्लिट है, स्लिट सोर्स है. इट इज इल्यूमिनेटेड बाय आवर मोनोक्रोमैटिक लाइट. अब उस रिफ्रैक्टिंग एज पर इस सोर्स से एक रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगा, मतलब नॉर्मल इंसिडेंस होगा. और आपने तबियत से देखा है कि इफ रे इंसिडेंट ऑन एनी ट्रांसपेरेंट सरफेस नॉर्मली, डज इट डेविएट? वो डेविएट होने वाला है क्या? वो डेविएट नहीं होगा. राइट. तो फिर निकालो वो रे सीधा, मतलब मैं निकालूंगा उस रे को मैंने सीधा निकाल लिया. रे incident normally on refracting edge passed without deviation. Okay, हो गया deviation, sorry हो गया passing without deviation. अब
ये स्लिट सोर्स से दो रेज ऐसे इधर ले लेंगे, हम सिमेट्रिक लेंगे, डायग्राम अच्छे आना इसलिए। सिमेट्रिक रे अगर ले लिया यहां से तो एक इधर जाएगा, इधर का मत सुनो, सोचो अभी यहाँ पे ये एनिमेशन दिया गया झट से, उसके बाद तो आ गया, लेकिन मैं बताने वाला हूँ ये कैसे उधर जाएगा। दूसरा रे सिमेट, जितना डिस्टेंस मैंने इधर लिया, डायग्राम अच्छी आने के लिए बोल रहा हूं मैं कि दूसरा रे उतने ही डिस्टेंस पर इधर लो, वैसा जरूरी नहीं होता, पर डायग्राम फिर हमें भी समझ में नहीं आती कि अच्छी है, करेक्ट है क्या रहा। सो यहाँ ये दूसरी रे इधर आई और उधर की रे जैसी नॉर्मल के तरफ झुक गई, मतलब इस पहले रे के तरफ झुक गई, वो वैसे ही ये रे झुक गई। कैसे झुक गई जरा मैं एक्सप्लेन करता हूं, क्या जरूरी है। ये जो रे डिफ्लेक्ट हुआ है ये समझ में आया क्या आपको? ये देखो, मैं ये ऊपर का हिस्सा लेता हूं और मेरा एक ये सोर्स इधर है, ये सीधा चले गया है। अब मैं यहां लिया हूं एक रे, तो ये तो होता है नॉर्मल, अरे होता है कि नहीं नॉर्मल, ये नॉर्मल होगा, इस स्लैंटिंग सरफेस को नॉर्मल है ना, और ये एंगल हुआ है फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, अब हम लोग ये से बताएंगे कि भाई इसका तो रास्ता सीधा था, कहां से था, ये था इसका सीधा रास्ता, ऐसा इधर पर जाएगा कि वो उधर, ये सीधा जाने वाला है क्या, नहीं जाने वाला, वो तो बेंड होने वाला है। तो बेंड होना मतलब इधर जाएगा, मान लो वो इधर आया होगा, वो इधर आया होगा, ऐसा चले गया होगा, मान लो चले गया होगा, मान लो क्या लगता है। अब ये तो फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस पर फिर एक बार नॉर्मल, अब यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से, क्योंकि डेंसर टू रेयरर जा रहा है। तो सॉरी, इधर जाना था इसे, ये इसे ऐसा इधर जाना था, पर क्या वो जाएगा क्या, नहीं जाएगा, वो थोड़ा सा आगे चले जाएगा, आगे जाएगा, तो यहां से इधर जा भी सकता, पर इस ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा इधर आया कि नहीं, आया जरूर। अब मैं अगर ये दूसरा रे लेता, इस पर फिर नॉर्मल निकालता इस पॉइंट पर, तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हुआ है इसके मुकाबले। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर I1 मान लिया तो यहां मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा डिवेट हुआ ऐसा लगेगा, तो यहां सिचुएशन मेरी बिल्कुल एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसके मुकाबले कम होगा। तो ये सीधा जितना डेविएट ये हुआ, मतलब इसको अगर मैं पैरेलल निकालने की कोशिश करूंगा तो ये पैरेलल दिखाई देगा, है क्या नहीं ये पता नहीं, लेकिन दिखाई देगा, तो ये थोड़ा सा ऐसा ही होगा। इसका मतलब यहां अच्छा खासा इसको पैरेलल था, लेकिन अब ज्यादा डेविएट। इफ आई टेक दिस रे हियर, तो यहां मेरा नॉर्मल, यहां पर ये सीधा जा सकता है, यहां इस पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो सकता है, तो ये रे इधर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल चले जाएगा। अरे समझे क्या ये इतना मेरा जो बताया ये काम में आया या नहीं आया, इतनी सारी बातें मैंने की, ये कुछ काम में आई क्या समझने में? ये ऊपर भी जा सकता, मतलब इससे ऊपर नहीं, पर इतना डेविएशन हो सकता, थोड़ा सा कम डेविएशन होगा, थोड़ा सा और कम डेविएशन होगा, पर एक रे बिल्कुल ऐसा सीधा जाने का चांस है। ओके, चलो तो फिर हमने इस रे को सीधा गया हुआ ऐसा ही रे सेलेक्ट किया, असल में ये रे इधर भी गया होगा, ये रे इधर भी और गया होगा,
और ये रे इधर भी गया हो गई, डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस। पर मैंने ऐसा एक रे चूज किया कि जिसका ये पाथ ऐसा हो, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर बेटर डायग्राम। आप लोगों ने ऐसा ये रे चूज किया, ये रे चूज किया, तो कुछ भी फर्क नहीं गिरता। एंड दिस इज व्हाई नाउ I take one ray and it is deviated in this direction. Similarly, इधर अभी मेरा इमेज है, मैं इधर का नहीं एक्सप्लेन करूंगा, क्या करना चाहिए? अरे मैं इस रे का पाथ कैसा चेंज होता है ये समझाऊं क्या? अगर हाँ तो बोलो जल्दी। नहीं ना? नहीं ना? ओके 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 ओके, चलो 3 रेज हमारे पास आ गए। अब देखो, अगर मैं यहां बीच में कहीं एक रे इंसिडेंट करता, यहां बीच में या इस बीच में, तो वो किधर जाएगा रे? पैरेलल जाएगा, नीचे चले जाए, ये वाला रे पूछ रहा हूं मैं। पैरेलल ही जाएगा, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? बताओ, या ये रे पैरेलल जाएगा या सेंटर वाले लाइन को क्रॉस होगा, क्या दूर चले जाएगा? इसके लिए आप लोगों को ये डायग्राम समझनी जरूरी होगी। देखो, मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस कम कम करते चले गए तो इसका ऐसा जाना शुरू हुआ, और कम किया तो ऐसा जाएगा कि नहीं? हेलो डियर फ्रेंड्स, है ना? ऊपर की रे नीचे चले जाएगी, नीचे की रे ऊपर चले जाएगी, है ना? नक्की पटलं का? एवढे सगळे एफर्ट्स तुम्हाला समजण्यासाठी कामात आलेत का? हाँ हाँ, कामात आले। तो हम लोग ले लेंगे फिर, वी आर गोइंग टू टेक 2 रेज, एडिशनल 2 रेज ऑफ। ये रे लिया आपने, बोला नीचे चले गए तो गया वो। अब इस रे को ले लेंगे तो ये ऊपर चले जाएगा। और अगर ये सिमेट्रिक लेते हैं तो ये 2 रेज एक ही जगह मीट हो जाएंगे। और बोल रहा हूं मैं, इट इज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जरूरी नहीं कि ये भी रे सिमेट्रिक लेना, ये रे को तुम इधर भी ले सकते, पर एक बात पक्की है कि यहां से क्रॉसिंग एक ही जगह होगी, क्योंकि दिस इज एज गुड एज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा सेम कॉन्वर्जिंग करते क्या नहीं? उनकी एबिलिटी कॉन्वर्ज करने की सेम होती है कि नहीं? सारे रेज फोकस में से चले जाते हैं कि नहीं? अरे ये फिर इस प्रिज्म, प्रिज्म मतलब लेंस का, तो लेंस जैसा ही तो काम करता है। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जैसा है और उसका ये फोकस है, तो सारे रेज यहाँ पे से फोकस, सॉरी, जो जो अपने कॉन्वर्ज हो गई, ये सारी रेज यहाँ पे से क्रॉस क्रॉस होते ही सारे रेज यहां से मिल जाएंगे। मिल गए, 2 रेज क्रॉसिंग हो गई, ये समझ में आया? डायग्राम तुम्ही काढूच नका सध्याला, डायग्राम एकदम सोपी आहे, मी तुम्हाला काढून देईल डायग्राम, एकदम सोपी डायग्राम आहे, तुम्ही सध्याला नका भानगडीत पडू। हा, या सगळ्या रियल रेज आहेत। आता आपल्याकडे मायक्रोमीटर आयपीस आहे, we are going to watch, we are going to see these rays through micrometer eyepiece। अगर ये रे, ये वाला रे माइक्रोमीटर आईपीस से हम देखेंगे तो कहां से आया ऐसा नजर आएगा? इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम समवेयर एल्स, पीछे से आया ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि इससे थोड़ा पता कि ऐसा बेंड होके दिखता है। कहां से आया ये पता नहीं, पर दिखाई देता है वो सीधा आया इधर से, क्योंकि दिमाग में रहता ना, रे ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो पीछे से आया है ऐसा समझ में आएगा इस माइक्रोमीटर आईपीस को। आर यू एग्री विद दिस? छोटी छोटी बातें बताया करो। आप लोगों को ये एक्सेप्टेड है क्या? ये एक्सेप्ट है क्या कि माइक्रोमीटर से ये रे अगर देखा गया तो ये पीछे से आया ऐसा इमेजिनेशन होगा? होगा ना? राइट, ओके। अगर अब देखो, ये माइक्रोमीटर आईपीस इस रे को देखा, ये माइक्रोमीटर आईपीस मैंने नीचे लिया और इस रे को
अगर देखने की कोशिश की तो फिर ये देखेगा पीछे कहीं से तो भी आया बोल के। पर इन दोनों रेज का जो क्रॉसिंग पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम बोलेंगे कि रेज इमिटिंग फ्रॉम दैट पॉइंट। और जहां से रेज इमिट होते हैं उसको हम सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं कि नहीं। जहां से हम लाइट इमिट होता हुआ देखते हैं उसे हम लोग सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं कि नहीं। जहां से स्टार की लाइट आती हुई नजर आती है वहां पे स्टार है ऐसा हम बोलते कि नहीं। असल में वो स्टार अब उस समय उस जगह होगा कि नहीं ये भी पता नहीं, वो जिंदा है कि नहीं ये भी पता नहीं। तो जो स्टार असतो ना सध्याला चांदण्या दिसतात ना रात्री, त्या सध्याला आहेत का नाही याची खात्री नाही, फक्त आम्हाला दिसतात त्या। आणि तिथे तर नाहीच त्या, कारण की आवर युनिवर्स इज एक्सपांडिंग। समजले का? ते कुठेतरी दुसरीकडे गेलेलं असतात त्या सध्याला फिरत फिरत, पण तिथं असताना लाईट इमिट होते आणि ती लाईट आमच्या डोळ्यात येते म्हणून आम्ही म्हणतो की नाही नाही स्टार तिथंच आहे। तिकडून रे आल्यात ना तिकडे सोर्स आहे असं आपलं डोकं सांगतं आपल्याला। म्हणून म्हणतो आपण इट ऍपियर्स टू कम फ्रॉम काय दिस आईपीस रेज appears to come from this point। अगर वो नीचे आया तो और इसने वो उस रे को देखा तो वो दिखाई देता फिर यहां से कैसे तो भी आया। मतलब दिस पॉइंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ लाइट। पर वो है क्या वहां पर? ओ वहां पे नहीं है। टीवी में हमें बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं और अगर हम लोग बोले कि चलो यार एक के साथ हाथ मिलाएंगे शेक हैंड करेंगे है क्या नहीं, और चले गए टीवी के पीछे से तो क्या दिखता है क्या कुछ? दिखता है कुछ? कुछ नहीं दिखता। वैसे बायोप्रिज्म के पीछे से आकर देखने लगा ना कोई यहाँ पर तो कुछ नहीं दिखेगा। तो ये रियल सोर्स है क्या? ये रियल नहीं है। तो जो रियल नहीं है उसे कहते हैं इमेजिनरी और यहाँ कहते वर्चुअल। जैसे अपनी वर्चुअल मीटिंग चालू है कि नहीं, वर्चुअली अपन एक दूसरे के सामने है कि नहीं, है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। असल में तो मैं ही तुम्हारे सामने हूं, तुम कहाँ मेरे सामने है, तुम कहाँ पता है मुझे क्या पता है कि कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं है कि नहीं। कौन क्या कर रहा है पता है कि मुझे। असल में बोलने को है अगर इस आईपीस ने इस रे को देखा तो फिर चल रे बाबा चल 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 घूम जा सिलसिल खुल जा सिम सिम, तो ये दिखेगा यहां से इधर से आए वाला। और अगर इस रे को देखने को चले गए ऊपर तो फिर ये आए ये रे आए हुआ लगेगा यहां कहीं से। तो दूसरा एक पॉइंट मिल गया हमें जहां से रेज आते हैं ऐसा लगता है। मतलब रेज appears to come from these two sources and so these are called virtual sources। समझे क्या? These are called virtual sources and rays emitted by these two sources interfere in these region and these two sources and this source are in a plane। एक ही प्लेन में आ जाएंगे। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम लोग कहते स्मॉल डी एंड दिस रीजन इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस रीजन, क्योंकि इसकी रेज इधर वाले रीजन में ये सोर्स की रेज इधर वाले रीजन में इंटरफेयर हो गई एंड हमें मिला इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस रीजन। गॉट इट? इतनी बातें समझ में आई क्या रे बाबा नो? दोस्त कंपनी ये बायप्रिझम एक्सपेरिमेंटची रेड डायग्राम कशी काय होती समजली? समजली का? रिपीट करू का एकदा इन शॉर्ट 2च मिनिटांमध्ये? जेवढ्या गोष्टी लिहायच्या तेवढ्याच मी बोलणार, बाकी काही नाही। हाँ सांगू? चलो ठीक है दोस्तों, ये देखो देखो देखो
Biprism experiment is performed by Biprism experiment is performed by a scientist named as the Fresnel. So this experiment is also called as the Fresnel's biprism experiment. Biprism is a prism whose obtuse refracting angle is nearly equal to 180 degrees. Now this biprism is taken and another monochromatic source or slit source is placed at some distance from this biprism. Biprism is adjusted or rotated such that its refracting edge is parallel to the slit source. Now, one ray is coming from the slit source which will incident on the refracting edge. That ray will be perpendicular incidence, normal incidence, and therefore it will pass without deviation like this. And other rays which are being incident on these slanting surfaces symmetrically, let they are incident symmetrically, then one ray incident on upper side, and let us consider that it is after refraction passing parallel to the first ray. Similarly, other ray is incident on lower side and it is passed parallel to the first two rays, earlier two rays. And this is what now about three rays. Let us consider two more rays incident on the biprism symmetrically, then their path after refraction will be as shown in the diagram. Here, micrometer eyepiece is taken to observe rays, then rays appears to come from two virtual sources, and these two virtual sources are S1 and S2. So S1 and S2 are virtual sources. They are observed in a plane of the slit source, yes, and rays coming from S1 and S2 interfere in this region called as interference region. ये है दोस्तों थेरी इस बायप्रिझम एक्सपेरिमेंट की. जशी जशी डायग्राम आम्ही काढली तसं तसं बोलत राहायचं, बाकी काहीच नाही त्याच्यामध्ये. आता बघा काय घडतं ते. ये जो है हम लोग अब डायग्राम निकालेंगे. आता काढायची का डायग्राम? तुम्ही आम्ही सोबत काढायचे. आता तुम्ही डायग्राम काढलीच पाहिजे डायग्राम. चला 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 चला. ही घ्या माझा बायप्रिझम. हा माझा बायप्रिझम. चला तुम्ही काढलाय का बायप्रिझम? काढला. लेट दिस इज द स्लिट सोर्स, yes, and now one ray incident normally on the biprism and it passed undeviated. रे ला arrow द्या. विदाउट ची डायग्राम मला पाठवताना तर मी 50 वेळेस क्रॉस असं चुक 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 पाठ रांग 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 पाठवून चला. चला झालं का? एक रे काढून झाली का? झाली काढून. मी पण स्केल वापरत नाही. तुम्ही स्केल वापरायची. मला स्केल वापरता येते. माझ्याकडे आहे रेज. छानपैकी स्ट्रेट लाईन काढते. मग काही गरज नाही मला. माझी लाईन बऱ्यापैकी सरळ येते है ना. हाँ चलो दूसरा रे सिमेट्रिक ले रहा हूं मैं इधर से और इधर से. ये रेज है. चलो एरोज दिया क्या? एरोज दिले का सांगा. एरोज द्यायला लागते तुम्हाला तरच ते मला चांगलं वाटणार, नाही तर काय खरं नाही. चला आफ्टर रिफ्रॅक्शन these rays passed parallel to each other. ये सारी रेज है. आ गए क्या? आ गए. अब दोस्तों यहाँ हाथ चला के कुछ करनी है. यहाँ और दो रेस तो ले लो. सिमेट्रिक ले लो, कहीं भी ले लो, लेकिन सिमेट्रिक ले लो. बीच में ले लिया मैंने रेस. सिमेट्रिक रेज ले लिया. हेलो फ्रेंड्स, हैव टेकन दिस. अरे इतने रेज तो हो गए क्या निकाल के?
ये निकालना हुआ। हेलो, ये निकालना हुआ पक्का? राइट राइट। अब क्या करना है, रेज ऐसे डिफ्लेक्ट होने वाले कि S1 S2 मिलने वाला है और वो इसी प्लेन में मिलने वाले, ये तो हमें पक्का याद है, पक्का पता है। तो पहले ही यहां पर S1 और S2 की पोजीशन निकाल देने की, दिमाग में रखने की या निकाल देने की डायरेक्ट, और यहां से ये स्केल रखने के बाद डायरेक्ट यहां तक डॉटेड निकालना, यहां तक डॉटेड निकालना, और ये डॉटेड सीधा इधर ऐसे खींच लेना, ये वाली। वैसे ही इधर डॉटेड निकालना, इधर यहां तक डॉटेड निकालना, और सीधा ये क्रॉसिंग पॉइंट से नीचे जाने देना, और डायग्राम खत्म हो गई। इधर से माइक्रोमीटर आईपीस बस एक जगह रखो कहीं तो भी, खत्म। यहां बताना है ऐसे लाइंस मतलब इंटरफेरेंस रीजन वाली, और इसे नाम देना है इंटरफेरेंस रीजन। इंटरफेरेंस रीजन। और इन दो को, किन दो को, S1 एंड S2 आर वर्चुअल सोर्सेस, वर्चुअल सोर्सेस, ऐसा लिखना। डायग्राम 100% कंप्लीट हो गई। कितने मिनट में डायग्राम निकल सकते हैं हम लोग? ये ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, लेकिन इतना बताने के लिए जो अपने बोर्ड पे है, उसके लिए दोस्तों 2-2 मार्क्स मिलते बोर्ड में। ड्रा द वेल लेबल्ड रे डायग्राम ऑफ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, ऐसा क्वेश्चन आता है, आया था, आ भी सकता है। हाँ, क्या है ये? इसका आंसर है ड्रा द वेल लेबल्ड रे डायग्राम ऑफ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। दोस्तों मेरी ये लाइन भले टेढ़ी भी गई होगी, लेकिन मैंने स्केल यूज नहीं की, और ये बड़ा ऐसा इधर देखने को भी समय हमारे पास, ये देखो थोड़ा सा ऐसा बेंड नजर आता है ये, पर आई डोंट केयर, बहुत बेकार तो नहीं होगी, और होगी तो भी आप लोग एडजस्ट कर लो। ये सीधी रे है, ये स्केल से नहीं निकाला मैंने, मैं बोला था कि सीधा जाओ, ये एक जगह से निकालना है तो ये ऐसा निकलना चाहिए था, अभी देखो सीधी आ रहे, कितना बेंड होगी मेरे डायग्राम, बाप रे। ओके ओके। अरे डायग्राम काढून झाली का तुमची? डायग्राम काढून झाली का? काढून झाली ना? हा, ओके 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 ओके। तर चलो पुढे मग मी, हा, मी पुढे चालतो मग आता। आता बघा या आयपीसचं काय काय काम आहे आणखी। इथे बँड पॅटर्न मिळणार आहे, आणि तो कसा मिळणार आहे? तो मिळणार आहे, तो मिळणार आहे लाईक दिस, आपला इंटरफरन्स पॅटर्न मधला हा बँड पॅटर्न मिळतो असा। मग आम्ही समजा जर का मायक्रोमीटर आयपीस या मायक्रोमीटर आयपीस आम्ही समजा जर का असा इथं लावला किंवा इथं लावला, कुठे तरी लावा एका ठिकाणी, फोकस केला, मायक्रोस्कोप आहे तो, मायक्रोमीटर आयपीस म्हणजे मायक्रोस्कोप, मायक्रोस्कोपला ते पिस्टॉल मधून फायर करताना कसं क्रॉस दिसतं, पिक्चर मध्ये पाहिलं असं ना की जसं क्रॉस, तशी क्रॉस वायर असते। अगर ये क्रॉस वायर मान लो, क्रॉस वायर ऑफ माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन आइदर ब्राइट बैंड, तो माइक्रोमीटर आईपीस एक ऐसे स्केल पे फिक्स रहता है, ऐसा ऐसा, ये देखो ऐसा। हाँ, ये हॉरिजॉन्टल स्केल, ये माइक्रोमीटर का स्टैंड, और ये माइक्रोमीटर ऐसा। माइक्रोमीटर अगर ऐसा है तो हम लोग देखेंगे ऐसा, और ऐसा करते 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 करते
इस ब्राइट बैंड को ऑब्जर्व करेंगे। तो एक ब्राइट बैंड को ऑब्जर्व किया, नीचे इस स्केल पर रीडिंग ले ली, उस रीडिंग को नाम दे दो आर नॉट, दे दो रीडिंग आर नॉट। लेट रीडिंग ऑफ दिस ब्राइट बैंड इज आर नॉट। अब ये माइक्रोमीटर आईपीस को ऐसा सीधा घुमाओ, कैमरा वाला घूमता है कि नहीं, शूटिंग करने वाला ऐसा। तो ये ऐसा घूमने के बाद एक ही डायरेक्शन में जाने के बाद डार्क आएगा, ब्राइट आएगा, डार्क आएगा, ऐसा करते करते ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। मान लो मेरा 10वें ब्राइट बैंड को ये माइक्रोस्कोप चले गया, 10वें ब्राइट बैंड को माइक्रोस्कोप चले गए, और फिर हमने रीडिंग ली, उस रीडिंग को हम लोग नाम देंगे R10। R10 अगर उस रीडिंग को नाम दिया गया तो हमने कितने बैंड्स के बीच में चले, हमारे दो रीडिंग के बीच में कितने बैंड्स चले गए। हाँ 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 हाँ, सुशांत माने जी, कॉन्वेक्स लेंस का काम तो बहुत करना है, अभी इसके बाद वही है, तो इतना तो सुन ले। तेरा डाउट 100% क्लियर है दोस्त, एकदम नंबर 1 तेरा डाउट है। तू सोच रहा है अरे सर ने तो 4 बातें ली है, ऑप्टिकल बेंच पे 4 स्टैंड लिए, 4 चीजें रखी है, और सर तो कॉन्वेक्स लेंस को भूल गए ना। चलो उनको याद करके देंगे कि भाई व्हाट आर यू डूइंग। तो कॉन्वेक्स लेंस का तो बहुत अहम काम है। तो बस छोटी सी बात, तो इतना तो कर ले। सर लेट, ये कितने बैंड्स हमने बीच में क्रॉस किए रे, कितने बैंड्स क्रॉस करके हमने ये रीडिंग ले ली, 10 बैंड्स की रीडिंग, 10 बैंड्स हमने क्रॉस किए। तो 10 बैंड विड्थ है ना, 10 बैंड विड्थ मतलब कितना, ये रीडिंग R0, ये रीडिंग R10, तो 10 bandwidth is equal to what? 10 bandwidth is equal to R10 minus R0 किंवा R0। तो फिर बैंडविड्थ कितना, अरे बैंडविड्थ कितना, बैंडविड्थ आ गई R10 माइनस R0 डिवाइडेड बाय 10, दिस इज आवर बैंडविड्थ। So micrometer eyepiece is used to measure the bandwidth। तुम लोग बोलेंगे क्यों 10 लिया, अरे एक ही लेना था, क्या फायदा होगा रे, मैंने एक लेने के बजाय 10 लिया तो फायदा क्या हुआ, एक्यूरेसी बढ़ जाएंगी। पल्लवी वैष्णवी गायकवाड़, यस इट इज, डिस्टेंस बिटवीन आईपीस एंड सोर्स, डिस्टेंस बिटवीन आईपीस एंड सोर्स इज इक्वल टू कैपिटल डी। और ये कैपिटल डी हमने ऑप्टिकल बेंच पे स्केल लगा दी है, उसके हेल्प से कैपिटल डी मेजर की। एक ही लाइन में लिखना है थ्योरी इसकी, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड आईपीस और स्क्रीन। आईपीस मतलब स्क्रीन तो है ना, ये तो स्क्रीन ही है एक प्रकार की, एक किस्म की ये स्क्रीन है। तो हम लोग बोलेंगे सोर्स एंड स्क्रीन, इनके बीच में को डिस्टेंस, इनके बीच में का डिस्टेंस हम लोग कैपिटल डी बोलते। तो कैपिटल डी इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ अ मीटर स्केल फिक्स्ड ऑन ऑप्टिकल बेंच। अब ये प्रैक्टिकल का, एक्सपेरिमेंट का इंपॉर्टेंस है, इसका एप्लीकेशन है टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ और व्हाट इज द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? Aim of this experiment is to measure the wavelength of light। दोस्तों इस वेवलेंथ का मेजरमेंट करना है। ये सोर्स ने कौन सी हरी, पीली, लाल, येलो, कौन सी ये लाइट इमिट की होगी, उसका वेवलेंथ कितना है, ये है मेरा टारगेट। बट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट? वेवलेंथ का फॉर्मूला है बार एक्स स्मॉल डी
बाय कैपिटल डी, है क्या नहीं? है। अब देखो, ये जो लैम्बडा है ये मेरा टारगेट है, मुझे मेजर करना है लैम्बडा। पार एक्स मैंने मेजर कर लिया, वो R10 माइनस R0 बाय 10 इस बैंडविड्थ। कैपिटल डी वो भी मेजरमेंट हुआ, उसका मेजरमेंट हुआ मीटर स्केल से। रह गया स्मॉल डी। जब तक स्मॉल डी मेजर नहीं होता तब तक लैम्बडा डिटरमाइन नहीं कर सकते। पर स्मॉल डी क्या होता है? स्मॉल डी होता है डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सोर्सेस। अरे हो कि नहीं? अरे हा कि नहीं? है। अच्छा, ये दो सोर्सेस वर्चुअल सोर्सेस बोल के काम करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा, ये दो सोर्सेस कोहेरेंट सोर्सेस बोल के काम करेंगे कि नहीं? 100% करेंगे, क्योंकि ये इन्हीं के तो इमेजेस है। These two sources are coherent sources, monochromatic sources, narrow sources and placed close to each other. क्योंकि बायप्रिज्म ही छोटा है तो इनके बीच में डिस्टेंस बहुत छोटा आने वाला है दोस्तों। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता हमारे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए। तो ये सोर्सेस के बीच में का जो डिस्टेंस है ये मेजर करना है। वर्चुअल सोर्सेस है तो उनके बीच में का डिस्टेंस डायरेक्ट मेजर नहीं हो सकता। वो डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है, हमने जो संभाल के रखा है, छुपा के रखा है, और वो है अपना कॉन्वेक्स लेंस। क्योंकि हमारे एक्सपेरिमेंट के ऑप्टिकल बेंच पे 4 चीजें थी और एक था उसमें कॉन्वेक्स लेंस। अब बारी आ गई है कॉन्वेक्स लेंस को यूज करने की, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस बीच में रखा है बायप्रिज्म एंड स्क्रीन के बीच में, बायप्रिज्म एंड माइक्रोमीटर आईपीस के बीच में रखा था, याद है क्या? यहां पर था सोर्स, यहां पर थे बायप्रिज्म, यहां पर था लेंस, यहां पर थी माइक्रोमीटर आईपीस या स्क्रीन। ऐसी अरेंजमेंट है हमारी। अब ये कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इसके बीच में रखना है। किसके बीच में रखना है? बायप्रिज्म एंड स्क्रीन के बीच में अपना कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पर्टिकुलर फोकल लेंथ रखना है। पहली कंडीशन है कि ये सोर्स एंड स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस शुड बी मोर देन व्हाट? That distance should be more than 4 times focal length of the lens. ये होना चाहिए। Distance between source and eyepiece should be more than 4 times focal length of the lens. आप लोगों को ये पता है कि कॉन्वेक्स लेंस लिया जाए, इसका अगर ये बायो कॉन्वेक्स है तो दोनों तरफ से फोकस सेम डिस्टेंस पर, ये होता है 2f, ये होता है 2f, ये f, ये 2f, ये f, ये 2f। अगर मेरा ऑब्जेक्ट 2f के बियॉन्ड है तो इमेज कहां मिलती रे? एक रे पैराक्सियल, दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होता तो हमें मिलती है रे ऐसे इधर कहीं, और ये फोकस में सॉरी ऑप्टिकल सेंटर में से चलेगा रे, तो यहां कहीं रे मिलती है, सॉरी यहां कहीं इमेज मिलती है। तो यू नो दैट इफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, इमेज इज इन बिटवीन f एंड 2f। अरे हा कि ना? हेलो फ्रेंड्स, हेलो माइक चेक, है ना? अच्छा दोस्तों, अब ऐसे सिचुएशन में मुझे अगर ऑब्जेक्ट एफ एंड 2f के बीच में रखना है, ये होगा बियॉन्ड 2f। अगर मुझे एफ एंड 2f के बीच में रखना है तो इमेज कहां मिलेंगे रे? आप लोग बताएंगे।
क्या आप लोग बताएंगे, अगर मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर बिटवीन एफ एंड टू एफ, तो इमेज कहाँ मिलती? रे डायग्राम फिक्स्ड है, रे डायग्राम को कुछ फर्क नहीं गिरता। ये देखो, पैराक्सियल रेज पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। अब ऑप्टिकल सेंटर से चले गई तो ये मिलती है कहीं ऐसा इधर, इमेज चले गए बियॉन्ड टू एफ, एफ एंड टू एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज मिलती है बियॉन्ड टू एफ। पता है क्या नहीं? पर आप मुझे बताओ, आप लोग either in first case or in second case, what is distance between object and image? What is distance between object and image? तुम लोग मुझे कल बताएंगे, ये रे डायग्राम निकाल के घर पे, ये वाली, ये जो दो डायग्राम्स मैंने निकाली है, एक ये ग्रीन कलर के लिए, ये व्हाइट कलर के लिए, तो आप लोग घर पे दो डायग्राम्स निकालेंगे और मेजर करेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड इमेज इज वेदर 4f लेस देन 4f और ग्रेटर देन 4f। हेलो फ्रेंड्स, विल यू डू, अरे बताओ, विल यू डू दिस? जल्दी 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 करो। आप करेंगे कि ये रे डायग्राम निकाल के मुझे बताएंगे, मुझे भेज देंगे क्या? राइट, रे डायग्राम निकालो, वो मुझे भेजो और फिर आंसर दे दो कि डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड सॉरी ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज वेदर लेस देन 4f, 4f और ग्रेटर देन 4f, ये बताएंगे। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ आज के ताजा समाचार खत्म करते हैं। कल हम मिलेंगे फॉर द पर्पज ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन वर्चुअल सोर्सेस and many other things. That is what problems on the basis of interference pattern. Please be there, don't miss it. Thank you.